रे पंछी कल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना हुआ बेगाना चल उड़ जा रे पंछी हम उसकी खासियत की बात करें तो नहीं जी हम कहीं इसकी बात करें तो आप जी मैं काम तो आपका वो ट्रैक स्टार्ट जब की लगा खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था आज यहाँ और कल हो वहाँ ये जोगी वाला फेरा था ये तेरी जागीर नहीं थी ये तेरी जागीर नहीं थी चार घड़ी का डेरा था सदा रहा है इस दुनिया में किसका आबोदाना चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना चल उड़ जा रे पंछी पंछी चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना चल उड़ जा रे पंछी तिनका चुन कर नगरी एक बसाई तूने तिनका चुन कर नगरी एक बसाई बारिश में तेरी भीगी पांखें धूप में गर्मी खाई गम ना कर जो तेरी मेहनत तेरे काम नाई अच्छा है कुछ ले जाने से देकर ही कुछ जाना चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना चल उड़ जा रे पंछी Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone.
Thank you for attending today to celebrate the life and mourn the passing away of Aja, Mr. Jai Narayan. My name is Shelvin Narayan, and Aja, Mr. Jai Narayan, was the most loved younger brother to my Aji and Mama to my dad. Aja was the guiding light to many, and he'll be missed by all. In the program today, we have Panditjit speaking, doing the officiating prayers, eulogy from Mr. Jai Satnarayan, fond memories and short speech from Krishnil and Neeraj, and speech from Mr. Jairam Sharma. I'd like to start by passing on to Pandit Mr. Jagdishwar Sharma to do the officiating. In fact, we'll start with the eulogy first with Mr. Jai Satnarayan. Thank you. Thank you, son Selvin. It's a very sad day today for our family and friends in gathering here today to say our prayers and final farewell to a father, our Pitaji, a husband, a brother, a grandfather, a great-grandfather, a uncle, that's Mama and Fufa, a Samdi, to many, and a spiritual leader to hundreds of people gathered here. For many who are present here who did not know my father well, I would like to say a few words about him and his past history. My father was born in Fiji on 31st of January 1940 in a small village in Fiji Island called Sambeto, also known as Nandele. It's in the west of the main island of Fiji called Bitilevu, approximately 15 kilometers away from the Nandi airport. My father, Pitaji, sadly passed away after a long battling illness on last Thursday, 25th of January 2018 at 5 p.m. in Nepean Hospital. This was 6 days short of his 78th birthday. Sadly also, this day was also the birthday of my father's only sister, Chandrapali Kripal, our most loved Bachi Fua auntie, who passed not long ago on the 30th of September, September 2017 at the age of 85. My father was the second youngest of the 7 siblings, 6 brothers and 1 sister of our grandmother, Aji, Rajwanti, and grandfather, our Aja Ram Bharose. With the exception of the youngest brother, Master Hari Narayan, who had earlier travelled from Fiji last Friday night to be with us here today, but had to rush back to Fiji yesterday due to his only son, Pranil Narayan, having a brain hemorrhage. And he is being operated on as I speak. Basically, the doctors are working on him, neurosurgeons. So my kaka couldn't be here for my father's final farewell. All other brothers and sisters are no longer with us today. Still with us today from my father's brothers and sisters, partners are my mother, 2 aunties, Mrs. Babu Ram, who is among us here today, and Mrs. Sue Narayan, who is in Lotoka, Fiji Island. Our prayers are with Hari Kaka and Pranil, and we hope Brother Pranil will recover from his illness. Pitaji married my mother, Sarda Narayan, and had 4 children, 3 sons, myself, my 2 brothers, Jai Satya Prakash and Jai Satyanand, and a daughter, my sister Lakshmi Chapman. From Pitaji's immediate family, he left behind
2 daughter-in-laws, my wife Madhu, and youngest brother's wife Ashanan, 10 grandchildren, and 3 great-grandchildren. My father was the second generation Grimitian, which was the indentured labor from India to Fiji, and lost my grandmother at a very young age when he was about 3 years old. And as some of the picture slides will show, they grew up in a very, very poor and harsh conditions in Fiji in those days. My father was average, above average, and extremely bright and intelligent young man. He studied up to class 8, age 11, and he reached and almost completed his ITA study in 4.5 years. Unfortunately, whilst in year 8, he had to leave school to find work on the farm and towns to supplement family income to put food on the table for his brothers and sisters. At age 12, he left the village for the towns to find better paying jobs. He found work in a company named Burns Phillips South Seas Company Limited, first as a warehouse hand and sometimes as a delivery hand. He then progressed to become the warehouse manager of the company until around 1969 and decided to open his own business, which later he successfully did. In late 1969 or thereabout, he left Burns Phillips to start his own business and ran a very successful business in Fiji until 1987 military coup in the country. He was famously known for being a major produce trader in the country, mainly dealing with potatoes, onions, garlic, and spices. Like many disheartened, successful Fiji Indians, he left the shores of Fiji after the effects of the coup and came to live here in Australia. He lived in many suburbs of Sydney, namely Dulwich Hill, Parramatta, Wayland, Blair Ethel, and finally Rove's Crossing. He lived with my mother and brought up my nephew and grandson Neeraj Prakash, who is here with us today. Neeraj is not only a grandson but a son, and Neeraj was with my father during his good times and difficult times like a rock, and he was a family, and we as a family are very grateful to him and his wife Vashni, Julie, who we know as, for their relentless dedication and support to my mom and dad. My father was not a perfect man, but a larger-than-life character. From his very early age, he was a humble, helpful, religious, and spiritual person. He was like a rock again to my family and relatives and to friends who were close to him. After moving and finding work in the town of Lotoka, he helped my youngest uncle, who I mentioned before, Hari Narayan, to complete his teaching qualification and became a school teacher and finally a headmaster. He also helped 3 of my uncles to move out of the small farm that they had and find work and settle near the towns. He had been a total vegetarian for almost 55 years of his life. He had special God-gifted ability to connect to the spiritual world and guided and helped many people who came to him for help. He gave almost everything at his disposal to help others and those who came to him for help. He was the go-to person to all our poor families back in Fiji during the old days of post-Girmit in Fiji. And he was. In his last days, people consulted him, asked for guidance, and he was ever willing. We are probably not going to see another person like him in our lifetime or forever. We have here today amongst us lots of families and friends from various cities in Australia, and many have travelled
from overboard, America, New Zealand, Fiji, to say farewell and goodbye to my father. With the time constraint, will not allow me to mention the name, but to those, my family and I are very grateful to your commitment to be here with us to share our grief. There are also some who could not make it to Sydney in time to say their final farewell to Pitaji, and they have passed their heartily condolences message to our families here. Finally, in closing, on behalf of our family, I would like to thank everyone who is here in person and those who could not be here but have sent their messages, for coming and sharing the moment of grief with our family and joining us in our prayers this afternoon to pay homage to Pitaji. There are so many families and friends here who were extremely close to my father. I can say with confidence, closer than that he was to his own family members. And they have been solid support for my family, and again, due to time constraint, I am unable to name them all. But rest assured, friends, families, uncles and aunties and cousins, we value your presence and contribution. I would like to say to Pitaji, rest in peace, and may God bless your soul and help you with the next journey of your life. I personally pledge to follow the rules of your good preaching. Satya, Dharam, Bhakti ke will always try and follow. Thank you. Thank you, Kaka. Now we can start with the viewing from people at the back. Got a few people here today, and we'll continue with the proper functions while that's happening. So over to Panditji. ठीक है, जो लोग बाहर हैं वो पहले आए अंतिम दर्शन के लिए, और बिल्कुल शांति के दान देते हुए शांतिपूर्वक आकर दर्शन करें, और फूल इत्यादि है जो आत्मा के लिए अर्पण करा, बिल्कुल शांतिपूर्वक। साथ साथ में हम सभी मिलकर इस आत्मा के लिए प्रार्थना करें, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। अपने बीच में पूज्य और पंडित ऋषि राम शर्मा जी हैं, पंडित हेमंत शर्मा जी हैं, और साथ साथ में बड़े भाई मेलबर्न से आए हुए पंडित जयराम शर्मा जी कहीं पर है, कृपा करके आ जा भैया। साथ ही मिलकर इस आत्मा के लिए हम प्रार्थना करें, और बारीकी से और लोग जो वक्ता हैं बारी बारी से बोलते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में सभी लोग आकर दर्शन करते रहें। प्राय जाइएगा नहीं, बाहर रहिएगा बारी जब तक ये कार्यक्रम नहीं समाप्त हो जाए। और मिल जाए, हाथ जोड़े, शीश झुकाएं, उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वदस्सर्वा, स्वस्ति न पूकार्य विश्ववेदा, स्वस्ति न अरस्ताचो, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयो प्रथायं ओषधिषु पायो दिव्ये अंतरिक्षे पयो धापयो स्वस्ति पद सन्तु महं ये विष्णुरणाटमसि संसत्र विष्णु सूर्यासि विष्णु ध्रुमासि विष्णुमासि विष्णुवतेवा। ओम अग्नि देवता वतु देवता सूर्य देवता चंद्रमा देवता वसुदेवता रुद्र देवता मारुत देवता। ओम शांति शांति शांति। इनके कर लें स्पीचेस, ठीक है? हाँ भैया, जो स्पीचेस आप ऑर्गेनाइज करो। Now we have Krishnil and Neeraj providing fond memories and a short speech from the grandchildren's side. Krishnil. Hi everybody. Before I start, I'd just like to thank everyone who made it here. We've got a lot of family who came from America, Fiji, New Zealand, Melbourne, and a lot of places. All right. I'm Aja's oldest grandson. I lived with Aja my whole life.
He was my grandfather, my dad, my mentor, confidant, and my best friend. I could speak to him about anything. Things that I didn't feel comfortable sharing with anyone else. And he always had advice. Anything I wanted to do, I would always run it by him. Aja was one of a kind. He touched and impacted everyone he came in contact with, one way or another. He was an extremely organized person, especially when it came to time management and finances. Punctuality was a very strong trait of his. He had to always be on time, or as most of you know, he had to be there at least 30 minutes before time. Whenever there was a puja, a doctor's appointment, or anything planned at anyone's house or anywhere, he would always get there at least 30 minutes to an hour before. And on the same note, he would always get angry at me for making him late. I looked up to him. He was my idol. Throughout my life, I tried my best to pick up and learn as many life skills as I can from Aja. Aja lived a full and meaningful life, which most can only dream of. He helped and touched so many people. Throughout his life, Aja didn't leave any stone unturned. He did everything he had to. In his later days, when I walk past his room, I always glance. Now I'd always glance in and make sure he's okay. I'd always check up on him before leaving the house and again when I return. Now he's in a place where he will constantly be checking up on all of us. Aja, you'll be very missed. Thank you. Hi all. I am also one of Aja's grandsons. The best part about the relationship I had with Aja was that he treated me like one of his friends. Since school days to kindergarten to high school, I could chat to him about cricket, football, or anything else. Or even, he always used to joke. One of his famous sayings I remember was when he said, "Ladka, hum aapke age ra, hum ek bottle of beer ek hafta chalat raha." I definitely can't beat that record. Other things I liked about Aja was that he lived the way, it was his way or the highway. He knew what he wanted in life and he pursued it. From what he ate, to the TV shows he watched, or the jokes he shared, he did it all his way. It's a trait that everybody in this room really treasure about him. You will be missed by a lot of people, but you are in a better place now. Everybody has an Aja, but you are my Aja, the world's best Aja. Thank you. Thank you, Krishnu. We've still got viewing if you haven't progressed up the line. I think it might be from the ladies at the back if they want to start. Start with those that are seated. Start with the people who are seated at the back. Now we have Pandit Jairam to say a few words from the extended family. Nana. आदरणीय शोकाकुल परिवार, आए हुए दुखित मित्रगण, मृत्यु जब अपने स्थान को बनाती है तो सब लोग बहुत दुखित हो जाते हैं कि हमारे मध्य से किसी का बिछोह हो जाता है और दूसरी जीवन की यात्रा का पूर्ण विराम हो जाता है, फुल स्टॉप हो जाती है। अगर जो
ये संसार का चक्र नहीं चले तो संसार जैसे ज़्यादा आदमी हो जाता, आदमी तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया है, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? तो मृत्यु धर्म नीति के अंतर्गत होता है। जब से संसार चक्र चल रही है तब से, अगर जो आप अपने शास्त्रों को मानते हैं तो गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने बतलाया, जात सही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्च, वेयर देयर इज अ डेथ दैट इज सर्टेन। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। सवाल खड़ा होता है कि जीवन पाने के बाद में, जन्म पाने के बाद में जो जीवन की अवधि होती है वो हमारे मध्य होता है, हमारे अधीन होती है, और हर प्राणी को अपने जीवन को संवारना सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। स्वर्गीय श्री जैनानंद जी का परिचय हमारे साथ 1972-73 से है, और एक गांव में रहने के नाते लोटोका के फिलफोटी नाम की एक जगह थी, वहाँ हम लोग रहते थे और हम लोगों का भाईचारा का संबंध था। फिर चलते चलते 1993 में हमारी बहन की बेटी के साथ इनके बेटे का शादी हो गया। जयसत का शादी मधु के साथ जब हो गया तो भाई के साथ हम लोग ने समधी का संबंध भी जोड़ दिया, और हमारी ये रिश्ता हम लोगों को और नज़दीक में बांध दी, और तब से हमने इस परिवार को बहुत निकट से जाना है, देखा है। जैनानंद जी का जन्म जैसे उनके बेटे ने बतलाया नंदेरे सांबेतो में हुआ। कुछ अवधि वहाँ पूर्ण करने के बाद में वो बाहर निकले, और आखिरी में उन्होंने नौकरी चाकरी के बाद अपना एक छोटा सा दुकान खोला फिलफोटी में, और उसके बाद चलते चलते बोलो उसको बड़ा आलीशान दुकान बनाया, और फिर क्यों के बाद उसको आस्ते से बंद करना पड़ा। बहुत मेहनत से उन्होंने अपने घर गृहस्थी को चलाया और बच्चों का लालन पालन पोषण किया, बच्चों के पढ़ाई लिखाई की ओर उनको प्रेरित किया, और आज उनके बच्चे जो कुछ भी हैं वो नमूना आपके साथ में है। रही बात धर्म की, उन्होंने बहुत धर्म विचार का अनुसरण अपने जीवन में किया, और चलते चलते आखिरी चोर चंडाल की मृत्यु भी होती है, संत समाज का मृत्यु भी होता है, लेकिन जो आदमी संसार में जो कुछ करता है उसमें जो अच्छाई होती है उसको कहा जाता है। इसके लिए कहना जरूरी है कि भाई समधी हमारे अच्छे अच्छे कर्म करते करते अभी कुछ दिन पहले से अस्वस्थ हो गए, और अस्वस्थता के कारण चिकित्सा की प्राप्ति के लिए अस्पताल पहुँचे। 2-3 बार छुट्टी हुआ, फिर भीतर हुए, फिर बाहर आए, फिर भीतर गए, लेकिन अंतिम बार थी कि थोड़ा लंबे अरसे तक इनकी दौर अस्पताल में हो गई, और 25 तारीख पिछले बृहस्पतिवार को ये सदा सदा के लिए इस संसार के अपने बंधन से तोड़ दिया। समाचार मिलता है दुखी, और बच्चों में अपनी सांत्वना मैंने व्यक्त की। आदमी मर जाता उसको लाया तो नहीं जाता है, लेकिन आदमी की यादें हमारे बंद में रह जाती है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। स्वर्गीय श्री जैनानंद जी ने अपने जीवन के बहुत सारे से कर्म की यादें हमारे मन में छोड़ गए। जो उसको बहुत निकट से जानते हैं वो उस बातों को याद करेंगे, अपने जीवन उसका अमल करेंगे, और सिद्धांतिक तौर पर अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। अपना बने या ना बने, लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं पहुंचाना उनका एकमात्र लक्ष्य था। दूसरे के हित के लिए कुछ हो जाए तो करना जरूरी था, लेकिन अपना हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग अपना बनाना चाहते हैं, दूसरे का बने या ना बने, ऐसा होता था। इनके पास जब लॉरी गाड़ी वगैरह सब हो गई तो उससे बहुत लोगों को इन्होंने मदद किया। इनकी अपनी डायरेक्ट शिपमेंट हो गई थी आलू प्याज लहसुन आदि का, उससे इन्होंने बहुत लोगों को मदद किया। बहुत लोगों को नौकरी भी पार्ट टाइम मिल गई। तो ऐसे से बहुत सारे इन्होंने कर्म किया जो अपने जीवन के उत्थान के साथ साथ दूसरों की मदद किया। और ऐसे प्राणी को अगर जो हमारे मध्य से जाना होता है
तो थोड़ा दुख का विषय बन जाती है कि ऐसे आदमी हमारे मध्य से चले गए, लेकिन जाना तो जरूर होता है। मैं परिवार के प्रति सबसे पहले इनकी श्रीमती जो है उनको धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इनके अस्वस्थ के समय में और अपने जीवन को पूरा कुर्बानी किया उनके लिए। और जब अभी मैं आया था 1.5 हफ्ता या 2 हफ्ता पहले, तो 2-3 बार अस्पताल गया तो देखा शारदा वहाँ बैठी है, क्योंकि समधी के मुँह में एक ही नाम था, शारदा ये होना चाहिए, शारदा ये होना चाहिए, शारदा ये होना चाहिए, और शारदा वहाँ मौजूद होती थी। तो उन्होंने एक औरत होने के नाते अपना जो कर्तव्य है उसको भली प्रकार पूर्ण किया। बच्चे भी अपना जो योगदान था बाप के प्रति उन्होंने दिया, लेकिन यह सब हो जाने के बाद में भी हम लोग मृत्यु को किसी से बचा नहीं सकते। आज हम सब यहाँ पर इसलिए उपस्थित हुए हैं कि परिवार के प्रति अपनी हम हरदमदी व्यक्त कर सकें। दूसरा, हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे मध्य से जो पंच भौतिक शरीर से आत्मा का विछोह हुआ है, उस आत्मा को शांति और गति मिले। मैंने घर में भी यही बात कहा, अभी फिर कहूँगा कि सेवरी का जीवन बहुत उथल पुथल का जीवन बन गया था, लेकिन सेवरी के जो भीतर की दुनिया थी बहुत पवित्र था, और वो पवित्रता का प्रतीक होने के नाते प्रभु राम को माता सीता का वियोग भूल जाना पड़ा और सेवरी के द्वार पर जाना पड़ा। और जब सेवरी के द्वार पर पहुंचे तो सेवरी से उन्होंने बतलाया कि आज तुम्हारा जो गति है ये तो उनको होना चाहिए, जो बड़े बड़े मुनि ऋषि तपस्या करने वाले लोग हैं उनको मिलना चाहिए, लेकिन तुम्हारी जोली में बहुत सहज से आ गई है क्योंकि तुमने अपने गुरु की बात को माना। तो यहाँ एक शिक्षा हमारे लिए भी है कि अपने माँ बाप का, अपने गुरुओं का बातों को मानो, अच्छे मार्गों का अनुसरण करो और अंत में मिल जाएगा तुमको भगवान। योग वृंद दुर्लभ गति जोई, सो कहाँ आज सुलभ भई सोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। जीव को जब शिव मिल जाता है तो फिर उसको कुछ पात्री होने की जरूरत नहीं होती है। आदमी मरता है, उसकी दौड़ शमशान भूमि तक होती है। शमशान भूमि पर आ जाने के बाद में फिर हमको सिडनी सिटी जाना नहीं पड़ता है। तो अंत में ये जो शमशान भूमि है हम सबके लिए है। अगर जो हम धनवान हैं उसके लिए भी है, अगर जो हम गरीब हैं उनके लिए भी है, हम भिखारी हैं उसके लिए भी है, हम ज्ञानवान हैं उनके लिए भी है, और अगर जो हम अनाड़ी हैं तो उनके लिए है। सम का मतलब बराबर, शान का मतलब तुमको अधिकार देने वाली, और ये भूमि शमशान भूमि है। यहाँ राजा रंग फकीर सब आते और चले जाते हैं, एक ही चिता पर सबकी होती है। व्यक्तिगत जीवन में सब अलग अलग रूप में रहते हैं, लेकिन अंत में जब उसकी चिता बनती है तो यही शमशान भूमि पर बनती है। चिता बनने रखने से पहले हम लोग सब प्रार्थना करेंगे पंडित जी के साथ, और क्षमा करना, उसके बाद में हम लोग फिर जो शेष कार्य है उसको पूर्ण करेंगे। धन्यवाद। Thank you, Pandit ji. We've got one more Pandit at the last speak. 2 more? Okay. I'll get Pandit Hemant first. ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेवं सर्वकार्येषु सर्वदा। हमारे उपस्थित ब्राह्मणगण तथा दुखित जन समुदाय, आज बड़ी दुख की बेला है जबकि हमारे समक्ष से श्रीमान जी का इस धरातल से निधन हो गया और भगवान के शरणागत में चले गए। आदरणीय जन समुदाय, ये कोई नई बात नहीं है कि पहली बार हो रहा है ऐसा। ये मृत लोक है और मृत लोक में हम मरने के लिए आए हैं। यहाँ कोई अमर नहीं बंधुगण, याद रखना। आज
ये श्रीमान जी अपने अंतिम नींद को अपना चुके हैं। वो ऐसा नींद है जिस नींद को सारे परिवार के लोग जगाना चाहे तो जाग सकता नहीं है। हमारा जन्म कब हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ बंधुगण, लेकिन हमारा मरण कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये हम नहीं जान सकते हैं। हमारे हाथ में 6 चीज़ें जो भगवान ने हमारे बस में नहीं दिया है। जब प्रभु राम का वनवास हुआ, दशरथ महाराज का निधन हुआ, तो भरत जी बहुत विलाप किए, बहुत रोए। तो गुरु जी ने कहा, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अब जस विधि हाथ। मानव का मरण कब हो जाए कोई जान नहीं सकता है। मानव मरने के बाद में क्या अपने कुल योनि को प्राप्त हो वो कोई नहीं जान सकता बंधुगण। हमारे ऊपर कब हानि आ जाए हम जान नहीं सकते हैं, कब लाभ आ जाए हम जान नहीं सकते। हमारे माथे पे कब तिलक लग जाए, हमारे माथे पर कब कलंक लग जाए हम जान नहीं सकते। भगवान विधाता ने हमारे बस में नहीं दिया है। याद रखना बंधुगण, ये हमने कहा है मृतलोक है। मृतलोक में हम कुछ करने के लिए आए हैं और करने के पश्चात जैसा कर्म होता है, कर्म के अनुसार हमारा वो गति प्राप्त होता है। आज कहते हैं कि संसार में 100 प्रकार के रोग है, 99 प्रकार के औषधियाँ हैं, एक ही रोग का औषधि नहीं है बंधुगण, वो है मौत। मौत का कोई दवा नहीं है, निश्चित है। बतलाया गया है कि 2 ही संसार में 2 ही चीज़ें सत्य है। बोले 2 बातों को भूल मत जब चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अपने भगवान को नहीं भूलना कि सत्य है, भगवान है संसार में। दूसरा ये सत्य है बंधुगण कि हमारा मौत है, हम मरेंगे, एक दिन हमको भी मरना है। आज शमशान भूमि में आए हैं, किस कारण से आए हैं, कुछ खास कारण होता आने का। यहाँ पर जैसे पंडित जी ने कह चुका है, शमशान भूमि है, सब एक समान हो जाते हैं। और यहाँ पर एक कारण ये है कि हमको एक सबक मिलता है, एक दिन हमको भी इसी तरह जाना है, जाने से पहले हम कुछ अच्छा कर्म कर चले। दूसरा ये है कि आज इनके निमित्त हम भगवान से प्रार्थना करने के लिए भी आए हैं कि सब मिलकर प्रार्थना करें, भगवान का मनसा वाचक और अपराध क्षमा जय बंधुगण। बस हमारे भगवान से बहुत नहीं कहते, यही विनती प्रार्थना है कि आज श्रीमान जी का निमित्त जो कुछ कर नहीं सकते हैं, एक प्रार्थना है, विनती है और हमारे एक सबक है कि मानो हमको भी जाना है, जाने के लिए तैयार हो जाओ, कुछ ऐसा कर्म कर चलो संसार में ताकि जाते समय हमें दुख ना हो। क्योंकि संसार जो है ये सपने की तरह है, सपन की तरह है। शंकर भगवान भवानी से बोले, सुनो उमा, कहो उमा अनुभव में अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना है। एक सपना मानो सोते हुए देखता है और एक सपना मानो जागते हुए देखता है, और जिस दिन आँख बंद हो गया वो सपना पूरा हो गया। तो बंधुगण यही एक विनती है, प्रार्थना है। अभी भी समय है, सुबह का भूला शाम घर आ, जैसे भूला नहीं कहते हैं। हम कुछ ऐसा कर्म कर चले जीवन में ताकि और आवागमन से मुक्त होकर के हमेशा हमेशा के लिए भगवान के शरणागत में चलें। भगवान से प्रार्थना है, विनती है, भगवान ये जो शेष क्रिया बचा है ये इनके परिवार जो है मिल करके यथाविधि विधि पूर्वक कर सके ताकि इससे आत्मा को अच्छी गति की प्राप्ति हो। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी को जय श्री राम। And we've got Pandit Rakesh Sharma here as well. Say a few words. ब्राह्मण समुदाय ब्राह्मण परिसभा के कर्ता धर्ता पंडित जगदीश शर्मा जी, योम दुखित समाज, शोकाग्रस्त परिवारजन, भद्रपुष्ट मातृशक्तियाँ, अनेकों स्वरूप में जब ऐसे विशाल जीवात्मा का बिछोह होती है तो अनेक रूप में हृदय में दुख अवश्य होता है, क्योंकि ऐसे समाज की रक्षा करने वाले, धर्म को उज्जवल रखने वाले ऐसे प्राणी मात्र आज हमसे बिछो हैं। ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि अनेक रूप में
अनेकों वक्ता ने सुंदर से परिवार के प्रति भी कहा, समाज के और बताए हुए सुंदर श्री कृष्ण भगवान के आदेश भी समझाएं। यही प्रार्थना के साथ में, क्योंकि जब जीव आत्मा बिछे होता है तो वह अमर है, अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। नाशवान तो हमारे शरीर होता है जो पंच भौतिक है, लेकिन उसको भी वह अपने अपने तत्व में जाकर मिल जाता है। लेकिन हमारे साथ जो होता है वह होता है मन, बुद्धि, अहिंसा, जो हमारे साथ ही भगवान के और द्वार तक पहुँचते हैं, जहाँ जो हमारी कर्म निर्धारित होती है। मृत्यु भी हमारे लिए यह सीख है। भगवान से हम सब मिलकर प्रार्थना करें। ओम अद्धदेवकी देवगर्भ गोपीग्राह वरदनम मायापूतना ज्यूतापहरणम गवर्धन धारणम कंसेदन कर्वादिहनन कुंती सुतापारणम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलग पुरुषाय नमः। भगवान सदाशिव सभी को धारण करने वाले प्रभु, या जो आज से विशाल जीव आत्मा का बिछो आपके शिक्षा शरणागत में प्राप्ति हो, चाहे दक्षिण, चाहे किसी प्रकार से किसी पश्चिम, उत्तर, या किसी प्रकार से अनेकों रूप में पूरब से मार्ग या आकाश मार्ग से या धरती मार्ग से जाए, आपके ही शरणागत की प्राप्ति करें। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चिवा ओमकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। And Pandit Rishi Sharma as well. Jai Prabhu. ठीक, सभी कोई अपने अपने जगह पर हाथ जोड़ लें, चलें शिव स्तुति करें, फिर उसके बाद हम शांति पाठ करेंगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुवम व्यकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश भजम भजेहम निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीश गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पारम न तो हम तुषारादि शंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाषी शरीरम सुप्रमोली कल्लोली चारु गंगा लसदाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चल कुंडल विशालम प्रसन्न नीलकंठम दयालम मृगाधीश चंभार मूड मालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्टम प्रगालम प्ररेहम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रिशूल निर्मूल शूल पाणिम भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह बहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मन्मथारी नयोग उमानाथ पादार विंदम भजन्ति लोके परेवा नारायणम न तप्त सुखम शांति संताप नाशम प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपने पूजम न तो हम सदा सर्वदा शुभ दुभ्यम जरा जन्म दुखो घटातमानम प्रभु पाई आपद महिषम शंभो। ओम तिरुष्टास्कम इदं प्रोक्तम विशेषः ये फलन्ति नारा भक्ताय दाशम शंभु प्रसीदते। चले जो दिव्यांग आत्मा है उनके लिए प्रार्थना करें। ओम अनाधि निधनो देव शंख चक्र गदाधरा अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भवा अक्षि पुण्य संकाश पीतवास संयुक्ततम या नमस्ते गोविंदम
तेषां वित्ते भयम् कृष्ण कृष्ण कृपालु स्वतां गतिर्भवाम् संसार वर्णमग्नाननं प्रसिद्ध पुरुषोत्तमा नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्तं वरप्रदा अनेन तर्पणेनैव प्रेतमोक्षप्रदो भव हिरण्यगर्भपुरुषा व्यक्तस्वरूपिणा अस्य प्रेतमोक्षात् सुमृत भव सर्वदा। सभी कोई शीश झुका लें, हम अंतिम शांति पाठ करेंगे और जय आप बोलो। ओम धौ शांति अंतरिक्ष गुं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। Thank you, everyone. In closing, we'd like to thank all the specialist doctors and medical staff who cared for Mr. Jai Narayan at Nepean Hospital, and all the family and friends who have supported us, provided thoughts, and attending today. The full 13-day ceremony will be held at Pinto's Place, 65 Malakona Crescent, Ropes Crossing. 30th January, we will have the Raki ash distribution. Tomorrow. Garu Puran will be read. The 7th of February marks the 10th day ceremony. No, From tomorrow, Garu Puran will be read. The 7th of February marks the 10th day. The 9th, the Pin Puja. And the 10th of February will be the final Hawan, which is a Saturday at 10 a.m. All held at 65 Malakuna Crescent, Ropes Crossing. Thank you all for attending, your thoughts and support. Okay, thank you. We can all move towards the right-hand side, on the grass area.